السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان عاصم کمال. ہم حاضر ہیں بلند شہر کے مدرسہ معراج العلوم میں. مدرسے کے ناظم اور سیکریٹری حضرت مولانا محمد ساجد صاحب قاسمی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آئیے ہم مولانا کا تعارف اور مدرسے کا تعارف اور مدرسے کی سرگرمیاں اور یہ مدرسہ کہاں واقع ہے آئیے شروع کرتے ہیں. مولانا، آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ اپنا تعارف کرائیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا نام محمد ساجد قاسمی ہے اور گڑھ سمبھاولی کے پاس ایک گاؤں ہے ویٹ ضلع ہاپوڑ میں پڑتا ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں. جی ماشاء اللہ. آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہے؟ میری ابتدائی تعلیم شمالی ہند کی قدیم دینی درسگاہ جامعہ عربیہ اعزاز العلوم ویٹ، وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا تھا. پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک اسکولنگ کی. اس کے بعد جناب قاری منصور احمد صاحب دامت برکت رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت کے وہ مالک تھے، ان کے پاس میں نے حفظ کیا ہے. اور اس کے بعد مدرسے ہی کے اندر یعنی جامعہ عربیہ اعزاز العلوم ویٹ ہی میں نے عربی دوم تک تعلیم حاصل کی ہے. اچھا، دوم تک آپ اعزاز العلوم میں پڑھے ہیں، تو یہ اعزاز العلوم میں پڑھائی دوم تک ہے یا اس سے آگے بھی ہے؟ نہیں، وہاں تک مشکات شریف تک تعلیم ہوتی ہے. اچھا، تو دوم کے بعد آپ پھر آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ کہاں جاری رکھا، کدھر گئے آپ؟ اس کے بعد ہم دیوبند گئے، دارالعلوم اور دارالعلوم وقت میں ہم نے داخلہ امتحان دیا. اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دارالعلوم وقت میں ہمارا انتخاب ہوا اور عربی سوم سے دور حدیث تک دارالعلوم وقت سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. وہیں سے میں نے فضیلت کی اچھا، تعلیم مکمل کی. ماشاء اللہ. تو سوم میں آپ گویا کہ دارالعلوم وقت پہنچ گئے ہیں اور سوم سے دور حدیث شریف تک آپ کا یہ 6 سالہ سفر دیوبند میں ہے. جی. تو ماشاءاللہ دیوبند میں آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی، بہت اتار چڑھاؤ اس 6 سال میں رہا ہوگا. گویا کہ مولانا آپ سوم میں دارالعلوم وقت پہنچ گئے ہیں، تو سوم سے دورے تک آپ کا یہ 6 سالہ سفر تعلیمی جو ہے دارالعلوم وقت میں جاری رہا. تو بہت سے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے، تو کوئی ایک یادگار میموری آپ کی جو دارالعلوم وقت میں رہی ہو؟ جی ہاں، دیوبند چونکہ ایک تعلیمی قصبہ ہے اور وہاں جنگ آزادی کی مسئلہ ہو یا ملک کو بچانے کا مسئلہ ہو، دینی تعلیم کا مسئلہ ہو، بہرحال وہاں تمام چیزوں کا ہیڈ آفس آپ کہہ سکتے ہیں. جی. اور 6 سالہ زندگی میں بہت سی چیزیں کہ زیادہ تر وہاں ہمیں سیکھنے کو ملا ہے. ہمارے اساتذہ انتہائی مشفق اور کرم فرما اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں. بڑی محنت اور لگن سے پڑھایا کرتے تھے. حضرت مولانا خورشید احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست عالم دین تھے. عثمانی خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور زبردست محدث تھے. ان کا انتقال میرے سامنے ہی وہاں پر ہوا ہے. اسی طریقے سے خطیب الاسلام جانشین حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے 12 پڑھنے کا شرف حاصل رہا. اور چونکہ حضرت تھانوی کے ایک واسطے سے حضرت تھانوی کے براہ راست شاگرد تھے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میزان آپ نے حضرت تھانوی سے شانہ بشانہ پڑھی تھی. اچھا. تو ہم کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت کے پاس گئے، ہم نے درخواست کی تو حضرت نے ہمیں میزان پڑھائی اور ہمیں باقاعدہ اجازت دی ان نسبتوں کی جو ان کے پاس. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے گویا کہ آپ ایک واسطے سے شاگرد ہیں. جی. اچھا، ماشاءاللہ. تو یہ تو تمام اساتذہ سے آپ کا تعلق رہا، بڑا گہرا ربط رہا، ان کے پاس آنا جانا، ملاقاتیں، اور ہر طرح سے آپ ان سے فیض اٹھاتے رہے ہیں. تو کوئی ایک استاذ جن کا آپ اپنی اس تعارفی ویڈیو میں نام لینا چاہیں گے، جن سے آپ کا بہت لگاؤ رہا اور آپ کو ان کو آپ سے بہت زیادہ لگاؤ رہا اور اب وہ آپ کے بیچ نہ ہوں اور آپ کو ہر وقت ان کی یاد رہتی ہو اور ان کا تذکرہ ہر وقت آپ کے دل میں خیال میں آتا رہتا ہو، تو کوئی ایک نام ایسا ان کا تذکرہ آپ کرنا چاہیں گے؟ جی. اساتذہ تو سب مشفق و مکرم تھے ہی اور سب سے ہمارا تعلق رہا الحمدللہ. دارالعلوم وقت میں کوئی ملازم، کوئی استاذ ایسے نہیں تھے جن سے ہمارا تعلق داری نہ ہو. آنا جانا بھی تھا، ملاقاتیں بھی تھیں، پڑھا بھی ہم وہاں کرتے تھے. لیکن ایک شخصیت تھی، مرکز نوائے قلم کے بانی تھے علامہ انور شاہ محدث کبیر. ان کے حفیظ و پوتے حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
जो मैदान सहाफ़त के शहसवार थे, बेताज बादशाह उनको कह सकते हैं, उनसे मैंने सहाफ़त में कलम चलाना भी सीखा। मेरे बड़े मुशफ़िक़ व मुकर्रम उस्ताद थे, आज वो इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, बहुत ज़्यादा याद भी आते हैं। बहरहाल बहुत बड़े मुशफ़िक़ और मुकर्रम थे, तो हज़रत इस दुनिया में नहीं है इस वक्त। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह मौलाना, आपको बड़े कामयाब और काबिल असातिज़ा मिले, तो आपने बहुत कुछ सीखा, और जो चीज़ें आपने सीखी हैं माशाअल्लाह, मैं यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी और आपके मदरसे में वो सब देख भी रहा हूँ कि क्या हुस्न इंतज़ाम के साथ आपका ये मदरसा चल रहा है, हर चीज़ सलीक़े से है, और एक करीने के साथ आपका मदरसा माशाअल्लाह अपने तालीमी सफ़र में रवां दवा है। तो ये यकीनन वहीं की झलक है, दारुल की झलक आपके मदरसे में, आपके काम में, आपके चलने फिरने में, आपकी बोलचाल में नज़र आती है। और जो ये आप माशाअल्लाह इतना ज़बरदस्त खिताब करते हैं, तकरीर फरमाते हैं, और इधर उधर भी आपका जाना रहता है, बड़ी तारीख़ें आपकी रहती हैं। इस्लाह मुआशरा के माशाअल्लाह आपने जमीयत के तहत अभी बड़े प्रोग्राम चलाए हैं, और बड़ा काम अल्लाह ने उनके ज़रिए से कराया है। तो ये आपकी तकरीर का और ये खिताबत का और ये इंतज़ामिया का, ये सब चीज़ें जो आपने सीखी हैं, इसकी इब्तिदा कैसे हुई? ये तकरीर करना कैसे आपने सीखा, और ये इंतज़ाम में इतना ज़बरदस्त आपका निखार कहाँ से आया? दरअसल ये हमारे असातिज़ा की तवज्जो और उनकी मेहनतों का समरा है कि आज अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये टूटी फूटी खिदमत ले रहा है। मदरस के अंदर एक निज़ाम है अंजुमन का, वहाँ बच्चों को तकरीर करना, लिखना, बोलना, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और इसी के साथ साथ बच्चों को ही अंजुमन की जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं ताकि वो इंतज़ाम और इंसलाम के सिलसिले में अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बरोकार ला सकें। तो इसी तरीके से जब हम दारुल वक़्फ़ के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ भी अंजुमन का निज़ाम था, हमारी ज़िले की भी वहाँ अंजुमन थी, अंजुमन तहज़ीबुल बयान तलवा ज़िला गाज़ियाबाद। तो उसमें हम शरीक होते थे। बहरहाल उन अंजुमनों में हमने पाबंदी की। हमारे जो उस वक्त निगरां हुआ करते थे, हमारी अंजुमन के सरपरस्त हफ़ीज़ हज़रत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम, वो हमारे सरपरस्त थे, जो काफ़ी अल्लाह वाले और वली सिफत इंसान हैं। इसी तरीके से नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असअद जलाल साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम हमारे निगरां थे। तो उन लोगों की सरपरस्ती में और उनकी निगरानी में हमने मेहनत की, उन्होंने हमको हमारी रहनुमाई की, रहबरी की। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हमें बोलने का सलीका अता फरमा दिया। उसी का ये नतीजा है कि आज 2-4 बातें हम लोगों के सामने कर लेते हैं, दीन की कुछ बातें बता देते हैं, असातिज़ा से जो सीखा है उस पैगाम को लोगों तक पहुँचा देते हैं। वहीं से अंजुमन के ज़रिए से ही इंतज़ाम इंसलाम, फिर उसके बाद दारुल वक़्फ़ में मरकज़ी अंजुमन हुआ करती थी बस्म हुज्जतुल इस्लाम, जिसके बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफ़ियान साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम के फ़र्ज़ंद अर्जुमन हज़रत मौलाना डॉक्टर शकीब साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम, डायरेक्टर हुज्जतुल इस्लाम अकेडमी और नाइब मुफ्ती दारुल वक़्फ़ इस वक्त हैं हज़रत। तो उसके वो बानी थे, उन्होंने वो मरकज़ी बज़्म कायम की थी। तो इस नाचीज़ को भी उस बज़्म की खिदमत करने का मौका मिला, और 2 साल में उसका नाज़िम रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर प्रोग्राम भी होते थे। तो उसमें हज़रत से मीटिंगें होती थी, गुफ्तगू होती थी, हज़रत हमें समझाया करते थे। तो वहीं से ही हमारी जो सलाहियतें थी उनमें निखार आया। और अब कोई भी बड़ा प्रोग्राम हमसे कहा जाए कि भाई ये प्रोग्राम करना है, इस तरह होना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आती है। तो ये उन अकाबरीन की सरपरस्ती में और निगरानी में जो चंद चीज़ें हमने सीखी हैं, उसी का ये समरा है कि आज बड़े से बड़ा प्रोग्राम, छोटे से छोटा प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आती है। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये आपकी जो तकरीर है, ये आपने दारुल वक़्फ़ में आपकी ज़िले की अंजुमन तहज़ीबुल अखलाक गाज़ियाबाद और हापुड़ की, उसमें सीखी है, और इसमें निखार जो आया है बज़्म हुज्जतुल इस्लाम जो दारुल वक़्फ़ की मरकज़ी बज़्म है। और ये जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं आपकी, ये माशाअल्लाह डॉक्टर शकीब साहब क़ासिमी दारुल वक़्फ़ के नाइब मुफ्ती, और इसी तरह से दूसरे असातिज़ा, ये सब उनकी सोहबत का असर है माशाअल्लाह। जो इंतज़ामी सलाहियत हम आपके अंदर देख रहे हैं, और मदरसे में जो आपने ये 4 चांद लगाए हुए हैं। तो गोया के 6 साल आप दारुल वक़्फ़ में रहे, बहुत सी चीज़ें आपने सीखी। तो आपकी फ़राग़त कौन से सन की है? ये मेरी फ़राग़त 2015 की है। अच्छा, 2015 की आपकी फ़राग़त है। फिर उसके बाद भी आपने तालीमी सिलसिला अपना दारुल या देवबंद से जारी रखा, या
कहीं और आ गए आप? जी जी, दौरान तालीम ही हमने BA में फ़ार्म डाला था मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। वहाँ से फ़राग़त के बाद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहू की ज़ेरे निगरानी चलने वाला एक इदारा NIFL जिसको निफल बोलते हैं, वहाँ हमने दाखिला लिया और वहाँ 1 साल लीडरशिप कोर्स किया। वहाँ इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इन तमाम चीज़ों की तालीम हासिल करने के बाद फिर तालीमी यानी कि हमारा वो ज़िंदगी का वो दूसरा रुख शुरू हुआ जो हमने असातिज़ा से सीखा, अब वो हम बच्चों को सिखाएं। अच्छा, गोया के दौरे के बाद आप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फेथ लीडरशिप कोर्स करने के लिए आ गए। 1 साल आपने लीडरशिप कोर्स किया। ये डिप्लोमा करने के बाद आप फिर मदरसे में पहुंच गए। तो ये जो आपका मदरसा है, मदरसा महराजुल उलूम, जिसमें हम आप बैठे हुए हैं और आप ये लाइब्रेरी मदरसे की शानदार देख रहे हैं, तो इसकी इब्तिदा कब से है? जी, 2016 में मैं बुलंदशहर में आया। मेरे वालिद यहाँ तकरीबन 15 सालों से रहते थे। पास में ही एक मस्जिद है, उसमें आप बहैसियत इमाम रहते थे। उसके बाद बुलंदशहर से कुछ फासले पर एक कस्बा शिवाली है, वहाँ एक मदरसा था, उसमें आप ज़िम्मेदार थे हमारे वालिद। फिर वो बुलंदशहर ही आ गए तो मैं भी फ़राग़त के बाद यहीं पे चला आया। उसके बाद मस्जिद की इमामत, मस्जिद के साथ मेरी खिदमत वाबस्ता हुई। उसके बाद फिर उलमा के मशवरे से, ख़ास तौर से बुलंदशहर के अंदर जो उलमा हैं उनके मशवरे से हमने एक इदारे की दागबेल डाली, मदरसा इस्लामिया अरबिया महराजुल उलूम। उसके अंदर बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया और 2016 में इस मदरसे का हमने आगाज़ कर दिया था इस मदरसे का। और जब से लेकर आज तक ये मदरसा महव सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। तकरीबन 30 बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं। तकरीबन 250 बच्चे नादिरा कुरान करीम मुकम्मल करके जा चुके हैं और इस वक्त में भी तालीम जारी है। और इसी के साथ साथ मदरसे में ज़िम्मेदारी है। उसके बाद मस्जिद से भी खिदमत वाबस्ता हैं, बहैसियत इमाम में वहाँ पर रहता हूँ। और हिंदुस्तान की जो मुअक्कद तंज़ीम है जमीयत उलमा हिंद, उससे भी मेरी खिदमत वाबस्ता हैं। जमीयत उलमा हिंद ने एक बहुत ही अहम शोबा शुरू किया हुआ है इस्लाह मुआशरा के नाम से, उसमें भी मैं अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ और कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे कानों पर ज़िली एतबार से। इस्लाह मुआशरा का काम जो हो रहा है उसमें मेरी कुछ न कुछ खिदमत रहती हैं। और जमीयत का जो एक ये स्कूलिंग का चल रहा है निज़ाम, उसमें आपको क्या ज़िम्मेदारी है? जी हाँ, जमीयत ने 3 साल पहले एक शोबा शुरू किया था मदारिस के बच्चों को ख़ास तौर से हाई स्कूल कराने का, तो जमीयत ओपन स्कूल के नाम से, लेकिन आजकल वो जमीयत स्टडी सेंटर हो गया है। और उसके तहत मदारिस में पढ़ने और पढ़ाने वाले को हाई स्कूल NIOS बोर्ड से कराई जाती है। तो उसका मैं ज़िला कोऑर्डिनेटर हूँ। हापुड़ और बुलंदशहर की ज़िम्मेदारी ख़ास तौर से मेरे साथ वाबस्ता है और अलीगढ़ भी उससे मुंसलिक है। इसी तरीके से मशरक़ी यूपी के 8-10 ज़िले हैं जहाँ की ज़िम्मेदारियाँ मैं यहाँ से बैठ कर ही करता हूँ। और बच्चों के एडमिशन होने हैं, उनके एग्ज़ाम हैं, सारी चीज़ें, बोर्ड का इम्तहान कराते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये मदरसा सन 2016 के बाद इसकी दागवेल आपने डाली, यानी कि आपके वालिद गिरामी। जी तो आपके वालिद साहब माशाल्लाह इमाम हैं, हाफिज़ कुरान हैं, कारी साहब हैं, जी जनाब अलहाज कारी रिफ़ाक़त अली साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत बख्शे। बड़ा ज़बरदस्त मदरसा आपने डाला है। आज भी मदरसे के ज़िम्मेदार मोहतमीम और बानी आप ही हैं और आपकी सरपरस्ती में माशाल्लाह ये तालीमी सफ़र चल रहा है। आपकी खिदमत सब आप उनकी ज़ेरे निगरानी है। अल्लाह आपकी खिदमत को, आपके मदरसे को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें देखा, सपोर्ट किया। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।